I repeat, whosoever is joining, please write your attendance in the chat box. Write your name and class roll number. I will start the class at 3 p.m. We'll wait for 2 more minutes. If anybody is joining, well and good. If the people are not joining, then we will start the class at 3 p.m. I repeat, those who have joined the class, please give your attendance in the chat box. Write your name and class roll number. Sir, which part will you be teaching? Gate? I'll talk. Just give me 1 more minute. Then Okay. I'll say everything. Sure. Again, I will repeat. Those who have joined the class, please give your attendance in the chat box. Write your name and class roll number. Okay, it's around 3 p.m. So let us start the class. I will teach the machine design as well as the vibration part in the gate. In this semester, you are having machine design as well as vibration part from design side. Fine. So I will be teaching you those two parts from gate. So please wait, let me share my screen. And tomorrow again we will meet at around 1 p.m. That is for finite element method class. I'll be taking that subject too. Wait. Can you see my screen? If you can, if anybody can say. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Then now is the entire screen is visible to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Thank you. Okay. So let us start the class. Again, I am repeating, whosoever has joined the meeting, please give your attendance in the chat box, write your name and class roll number. So first, let me, you all tell me that how was your paper, design paper? Sir, Hello. it Too was lengthy, very sir. lengthy paper. Actually, Too it took lengthy. very much One time by to one at a finish it. time. Talk one by one at a time. Sir, actually, it was a very lengthy paper and it took very much time to finish. So, मतलब after finishing हाथ में दर्द हो रहा था. इतना ओके लेंदी क्वेश्चन था. नहीं वो डिजाइन थोड़ा तो लेंदी होगा वो तो आप लोग भी जानते हो तो चलो एटलीस्ट पेपर तो इजी था आई थिंक पेपर इजी था. ओके पेपर मीडियम लेवल का था, मतलब टाइप। मीडियम लेवल का था ओके और कोई किसी को कुछ बोलना है पेपर के बारे में सर, दो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम थे। अच्छा किसका ये पार्ट सर, इजी ये लगा सर मेरा ऐसा पार्ट हुआ था. दो क्वेश्चन सेम ही था उस टाइप का. फाइन फाइन मेरा पार्ट इजी था कि सर का पार्ट इजी था सर, आपका पार्ट इजी था। अच्छा कबड्डी से चलो सर, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कौन सा पार्ट इजी था. सर, चलो जिसने ठीक जो है पार्ट पढ़ा ओके था उसके लिए वो इजी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिसको जो आता है उसके लिए वो इजी है जिसको नहीं आता है उसके लिए वो टफ है सिंपल चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज का यस so I will be taking the design part the complete machine design part as well as the vibration part from theory of machines fine so
Now, let me tell you what all books you will be requiring for these two. One is the complete design subject as well as the vibration part. Fine. Normally, if you would ask me, I would prefer VV Bhandari, my all-time favorite for design, and for theory of machines, SS Ratan. बहुत अच्छा किताब है, कोई आलतू फालतू का चीज लिखा हुआ नहीं है, एकदम काम का चीज लिखा हुआ है, एंड प्रॉब्लम्स भी इसमें स्टैंडर्ड है. अगर आप इन दो किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, अगर आप इन दो किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, देन डिजाइन एंड वाइब्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर ही पाओगे, आप अटेम्प्ट तो कर ही पाओगे. फाइन. तो ये दो किताब तो होना ही चाहिए आपके पास. अगर नहीं है, आई विल गिव यू द सॉफ्ट कॉपी. आई एम हैविंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ रतन, and for VV Bhandari I'm not having the soft copy, but better you should purchase it. Hello, hello. यस सर, यस सर. हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलो प्रद्युत. नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था. Okay, fine. So you should have, or you must have, these two books. One more thing I will suggest you, that you please take last 15 to 20 years gate paper. Please take last 15 to 20 years gate paper. It will be available in any shop. If it is not available, you can download it from net. But you should have those last 15 to 20 gate papers. Fine. And one more thing you need to do. What is that thing? You have to appear for mock test, online mock test. These days you can join Gate Academy for that mock test. You can join Gate Forum. I will be also taking the I will also take the mock test, fine, through Google Forms. If not daily, but that too in a week at least once. Fine. So, but I would prefer that either Gate Forum or Gate Academy, at least one mock test you should take. I think they'll charge you around some 2,500 or 3,000 rupees for complete 1 year test series. Why I am saying this? Because if you take that test series, you will be getting that examination environment, that yes, within that 3 hours time you have to sit in front of your computer, camera will be on, you cannot cheat. If you cheat, fine, automatically the test will get over, and basically you will get the feeling, you will get the flavor of that 3 hours examination, and how to tackle all the questions in that 3 hours examinations that you will face. So better I will suggest you that you please take any one mock test series, either of Gate Academy or of Gate Forum. ठीक है? किसी को कोई डाउट है? हेलो, No sir, no sir. फाइन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नॉर्मली मैंने किया था, मैंने जब गेट क्रैक किया था, फाइन, मैंने ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, स्लाइड दिख रहा है सबको? हेलो, Yes sir, yes sir, yes sir. लास्ट पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ नोट्स, मेक अ समरी कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली. अगर मैं डिजाइन पढ़ रहा हूं तो मेरा डिजाइन का एक कॉपी बनेगा, उसमें और कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ओनली डिजाइन, डिजाइन से रिलेटेड जो मेरे को लिखना है मैं वो लिखूंगा उसमें. अगर मैं हीट ट्रांसफर पढ़ रहा हूँ तो हीट ट्रांसफर का अलग कॉपी बनेगा मेरे पास. अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ तो उसका अलग कॉपी बनेगा. अगर मैं वाइब्रेशन पढ़ रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं वाइब्रेशन पढ़ रहा हूँ तो उसका अलग कॉपी बनेगा. आप मिक्स मत करना, क्योंकि लास्ट 1 वीक में क्या होगा, आपके पास जो ये सेल्फ नोट्स वाला जो कॉपी रहेगा, जो भी 10-12 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप लास्ट 1 वीक में खाली उस कॉपी को ही देखोगे जो आपने पूरे साल भर प्रिपेयर किया था, क्योंकि आपने वो कॉपी बनाया है. आपको पता है कि मैंने ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा है, किस पेज पे लिखा है, इस टॉपिक में क्या क्या चीज मेरे को पढ़ना है, क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है. एक ब्रीफ समरी. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू राइट ईच एंड एवरीथिंग, you make a notes,
नोट्स इज डिफरेंट, यू मेक अ शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट समरी, जैसे कि होता है ना, जैसे बुक में 10 पेज को मैं 2 पेज में लिख रहा हूं, लाइकवाइज यू हैव टू डू इट, फाइन, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक, इफ यू टेक भंडारी, फाइन, रीड line by line, and whatever you think that yes, this portion is important for me, note it down in that copy, note it down in that copy, fine, with important formula, fine, and in that same copy, lastly make a formula note. That is, if I am talking about fatigue failure, in fatigue failure how many formulas are there, and after writing the formula what you will be doing is that साइड में आप लिख लो ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए वैलिड है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फाइन, कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में पे उठा के लगाना नहीं है, मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं फटीग का ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ इसमें अगर ये फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल गुडमैन डायग्राम का जो इक्वेशन है बाजू में लिखना पड़ेगा दैट यस दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर गुडमैन डायग्राम, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर गर्बर डायग्राम, क्वेश्चन आ गया गर्बर डायग्राम का, आपने लगा दिया उसमें गुडमैन डायग्राम का फॉर्मूला, गलत हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइन, तो ये ध्यान में रखना, आप फॉर्मूला तो लिख रहे हो, लिखने के साथ साथ यू नीड टू कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड दैट where that formula will be applicable, that means this formula is valid for which conditions, is it clear? Yes, sir. फाइन, सो अगर आप मेरी बात मानो इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आखिरी में जाके आपका हेडेक कम होगा, खाली आपको आखिरी क्या एक हफ्ता ये जो सेल्फ नोट वाली जो कॉपी है यही देखनी है, इससे क्या रहेगा हमेशा आपके दिमाग में वो फॉर्मूला याद रहेगा, रात में जब मान लो तुम आज रात में जाके सो रहे हो, सोने से जस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगता है मैथ्स का, तुमने ऐसा सेल्फ नोट्स कॉपी बनाया है, एक बार पलट लो, हाँ आज मैंने मैट्रिक्स का लिखा है, एक बार देख लेता हूँ मैट्रिक्स में, अच्छा मैट्रिक्स का रैंक निकालूंगा तो ऐसे होगा, इसका ये करूंगा तो ऐसे ऐसे होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल, सुबह उठो एक बार देख लो उसको, रात में सोने से पहले एक बार देख लो, तो ये क्या रहेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब मैंने ऐसे ही किया था लास्ट का जो 14 डेज था मैंने खाली ये सेल्फ नोट कॉपी देखा था, लेकिन इसमें एक चीज करना, इसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, फिर वो हॉच पॉच हो जाएगा, ओनली इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट लाइंस, मींस मान लो जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट, ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिखो आप, वो पता होना चाहिए आपको, कहानी नहीं लिखना है कि हाँ मैं बॉडी पे लोड लगाया तो बॉडी डिफॉर्म होगा, देन इलास्टिक रीजन में जाएगा, देन प्लास्टिक रीजन में जाएगा, ये थोड़ी ना एग्जाम है कि 10 नंबर का एग्जाम है कि तुमको 10 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, कहानी नहीं लिखना है, वन लाइन में शॉर्ट जो तुमको समझ में आना चाहिए तुम वो लिखो, अब तुम बंगाली में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर, yes sir, yes sir. चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या सिलेबस है डिजाइन में और वाइब्रेशन में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ट्राई टू स्टिक विथ दिस सिलेबस, बिकॉज अगर आप यूपीएससी की बात करो तो यूपीएससी में तो सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, फाइन, अगर आप गेट की बात कर रहे हो तो आपको इसके बाहर का नहीं पढ़ना है, बेल्ट ड्राइव नहीं है मशीन डिजाइन में, बेल्ट ड्राइव से क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ना ही नहीं है बेल्ट ड्राइव, कुछ भी कर लो, जितना दिया है सिलेबस उसके अंदर का ही पढ़ना है, लेकिन हाँ अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, ठीक है, वहां पे बेल्ट ड्राइव है, वहां पे बेल्ट ड्राइव आता है, तो उसके लिए फिर आप बेल्ट ड्राइव अलग से पढ़ सकते हो, इसी का और सिलेबस बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत सारा टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, सो व्हाट आई विल टेल यू इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, फाइन, फिर ऐसा भी काम मत करो कि तुम गेट भी कर रहे हो कैट भी कर रहे हो, मतलब मल्टीपल चीज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा ना, उससे कुछ नहीं होगा ना, मैं इधर रहूंगा ना मैं उधर रहूंगा, तुम एक ही चीज पे फोकस करो कि हाँ मेरे को गेट निकालना है, मतलब कुछ भी करके निकालना है, बस उसी के पीछे भागो, ना ही मैं कैट के पीछे भाग रहा हूँ ना मैं उधर भाग रहा हूँ, कैट के लिए जाना है तो कैट में जाओ, गेट में आना है तो गेट में आओ, कोई भी एक चीज पे ध्यान दो, दोनों तीन चीज में ध्यान दोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है हमारा डिजाइन में, first part is the design for static and dynamic loading, fine,
दैट मीन्स अगर आप सेकेंड पार्ट इज योर फेलियर थ्योरीज, फैटीग स्ट्रेंथ एंड एसेंट डायग्राम्स। एक और चीज देखो, डिजाइन तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, डिजाइन 1 पढ़ चुके हो, डिजाइन 2 पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पे फिर से सब चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा शुरू से कि क्या होता है एसेंट डायग्राम, क्या होता है गर्बर डायग्राम, क्या होता है गुडमैन डायग्राम, नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं समरी बताऊंगा हर एक चीज का शॉर्ट में। एसेंट डायग्राम क्या है, 2 लाइन में समरी बताऊंगा, उसका 2 डायग्राम दिखाऊंगा, उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो दिखाऊंगा, किस कंडीशन के लिए वैलिड होता है वो बताऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉब्लम पे, चाहे वो कोई भी टॉपिक पकड़ लो डिजाइन का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो आपको एक ओवरव्यू पता है कि हाँ एसेंट डायग्राम है, ये कहानी है। अब वो कहानी अगर हम लोग अभी करने जाएंगे तो लाइफ में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक with important formulas, and our main target will be to solve more and more numericals। जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं गेट के न्यूमेरिकल्स वो तो करना ही करना है, प्लस अगर हमको और भी कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मिलते हैं किसी अच्छी किताब से वो भी हम लोग करेंगे। फाइन, चलो next is the third portion is the principle of design of machine elements such as bolted, riveted and welded joint। ये लास्ट टाइम था, आप ये जो तीनों टॉपिक है आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, डिजाइन 1 में पढ़ चुके हो। फाइन, नेक्स्ट that is fourth point is your shaft and gears। गियर्स में सब कुछ आएगा, दैट इज स्पर, हेलिकल, बेवल, वर्म, एवरीथिंग गियर में, ठीक है। देन बियरिंग, रोलिंग बियरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, अभी अभी आपने पढ़ा है, एकदम ताजा है आपके माइंड में। आई होप आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद होगा। फाइन, इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। फाइन, and the last portion of the design part syllabus is your brake, clutches and springs। ब्रेक, क्लच एंड स्प्रिंग्स। फाइन, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, डिजाइन में बेसिकली जो गेट के क्वेश्चंस आते हैं वो 10 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि हाँ डिजाइन द ब्रेक, डिजाइन द क्लच, ऐसा नहीं आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो अगर मैं क्लच की बात करूं, फाइन, we have 2 theories in clutch, one is uniform pressure theory, one is uniform wear theory। वो दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मुझे पता होना चाहिए, अगर वो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आते हैं। डिजाइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि डिजाइन द स्प्रिंग, डिजाइन द ब्रेक, नहीं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्प्रिंग में, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग इंडेक्स, किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग इंडेक्स कैसे निकालते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस डायमीटर बाय दैट डायमीटर, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको, पूरा डिजाइन प्रोसीजर पता नहीं होना चाहिए। फाइन, एंड नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट वाइब्रेशन पार्ट, इन वाइब्रेशन द गेट सिलेबस इज योर फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन of single degree of freedom systems, effect of damping, vibration isolation, and the last part is resonance and critical speed of shaft। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, critical speed of shaft। यहाँ से मतलब मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो लास्ट ईयर, मैं इस साल नहीं दिया गेट, लास्ट ईयर तक मैंने दिया था, तो क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट से क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट से क्वेश्चन आता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, से v मीटर पर सेकेंड, उस ब्लॉक से मैंने 2 स्प्रिंग या 3 स्प्रिंग आइदर पैरेलल में जोड़ दिया या सीरीज में जोड़ दिया, तो बोलेगा क्या, आप ओवरऑल पूरे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ। हम लोग सब करेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। फाइन, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन वाइब्रेशन पार्ट। एनी डाउट इन द सिलेबस? No, sir. No, sir. No, sir. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो एक बार, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। डिजाइन और वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिस इज द एनालिसिस, ईयर वाइज एनालिसिस, मतलब कौन से साल में कितने मार्क्स का आया। देखो 2002 में डिजाइन और वाइब्रेशन में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2003 में भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर आप ये देखो फ्रॉम 2002 टू 2008, देखो 2007 एंड 2008 में 17 एंड 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा फिगर डाउन हो गया, फ्रॉम 2009
टिल 2014-17 तक फिगर थोड़ा डाउन था, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसा आया था। देन अगेन 2018 एंड 19 में 6 और 9 मार्क्स का आया। अभी 2020 का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको। ये है आपका फिलहाल ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 2002 टू 2019। मान लो अगर 2021 में फिर से ऐसा रिपीट हो जाए, 2007 में जैसे 17 मार्क्स का आया था, 2008 में अगर 14 मार्क्स का आया था, अगर आपके 17 में पूरे 17 आ जाते हैं, 14 में पूरे 14 आ जाते हैं, तो आप भी जानते हो कि गेट में एक एक नंबर पे 1000 रैंक आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अपना रैंक ऊपर नीचे कर सकते हो 1000 नंबर में, ठीक है। तो इसको लाइटली लेना नहीं है, आप पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज 6 से 7 नंबर का तो सवाल आता ही आता है, डिजाइन और वाइब्रेशन मिला के। ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, अगर पेपर ठीक ठाक रहा, पेपर मॉडरेट लेवल का आया तो ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक अभी तक फिलहाल? No, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर है गेट एग्जाम का। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। हम लोग जब दिए थे, मैं जब शुरू में दिया था 2012 में, 2012 11 सॉरी 11 में दिया था मैंने, 11 12 13 14 उस टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम होता था। तो अभी वो ऑफलाइन एग्जाम बंद हो गया है। नाउ द एग्जाम पैटर्न इज कंप्लीटली ऑनलाइन, so it will be a single paper, single online paper, and time durations will be 3 hours. Total number of questions will be 65. Total marks of the paper will be 100. And in this 100 marks, there is a portion called general aptitude. It carries 15 marks and there will be a total of 10 questions. It carries 15 marks and there will be a total of 10 questions. फाइन। अब इसमें आप, ये बोनस है आपके लिए, अब जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है वो यहाँ पे 15 में 15 मार्क्स ला सकता है। मान लो आपका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है, आपने टेक्निकल में स्कोर किया आउट ऑफ 70, मान लो 40 स्कोर किया, यहाँ पे अगर आपने 15 में 15 स्कोर कर लिया तो आप समझ सकते हो कि आपका रैंक कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में भी आपको ध्यान देना है, फाइन, एप्टीट्यूड भी आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट, ये नहीं, हम लोग जब 2012 मैं जब 2012 में दिया था उस समय एप्टीट्यूड नहीं था। आई थिंक 12th के बाद इन लोगों ने एप्टीट्यूड डाला है गेट में। Next, I will discuss about the section weightage and the marks. Basically, if I talk about the domain means the mechanical engineering. Total marks allotted is 70 marks. Fine. Again, this 70 marks is split into two types. First is 1 marker questions and second one is 2 marker questions, including mathematics. 1 mark questions, there will be total 25 questions, and for 2 marks, there will be total 30 questions. Is 1 mark and in this 2 mark only मैथमेटिक्स क्वेश्चन विल इंक्लूड। फाइन, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसी 1 मार्क और 2 मार्क्स में ही रहेगा। फाइन, नेक्स्ट इज योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नियर अबाउट आता है आपका 15 मार्क्स का, मतलब 70 मार्क्स हो गया आपका मैकेनिकल का, 15 80 85 is your, then again last 15 marks is your mathematics and the remaining 15 marks is your aptitude. Fine, so mathematics जो भी आपने पढ़ा है starting from first semester till fourth semester, fine, everything is there in mathematics. एप्टीट्यूड ऑलरेडी मैंने बोल दिया है 15 मार्क्स। अब ये 15 मार्क्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। इन 1 मार्क यू विल गेट टोटल 5 क्वेश्चंस एंड इन 2 मार्क again you will get total 5 questions. So overall 5 2s are 10, 10 plus 5 is 15 marks. Fine. Next, now there is a negative marking. When I have given my GATE exam, there was only one type of negative marking, that is only 1/3 marks will be deducted for each and every question, whether it is a 1 marker question or it is a 2 marker question. But I think from 2014 or 15 onwards this pattern has been changed. For every incorrect answer for 1 mark question, 1/3 of the total marks allotted to the question will be deducted, and for every 2 marks question
2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपको जितना आता है आप उतना ही अटेम्प्ट करो। आप फिर ये सोचोगे कि नहीं मैं गेस करता हूँ, मैं तुक्का मार के मैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, अब तुक्के में पता चला कि 2 सही है बाकी 8 गलत है, अब वो 8 के रिस्पेक्ट में आपका माइनस होते जाएगा। और अगर आपका मार्क्स माइनस होते जा रहा है, तो पहले मान लो आपका मार्क्स आया था 55, फिर नेगेटिव होते 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 अगर वो 45 चले जा रहा है, तो आप सोचो कितना आपका रैंक गिर जाएगा। तो जितना आता है सॉलिड उतना ही अटेम्प्ट करना है। फिर आप चाहो तो आप 10%, 5% 10% आप गेस कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा का गेस नहीं करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन टाइप। किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली गेट में पूछे जाते हैं? बेसिकली गेट में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वन इज योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप सभी को पता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें 1 करेक्ट आंसर होता है जो कि आपको चूज करना पड़ता है। ये आपको 1 मार्कर पे भी मिल जाएगा एंड यू विल गेट दिस थिंग इन 2 मार्कर आल्सो। फाइन। अब जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो सेकेंड पोर्शन है, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आई थिंक 2015 ऑनवर्ड्स। 2015 तक ये नहीं था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। फाइन। इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में योर आंसर विल बी अ सिंगल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, सिग्मा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए निकालना है आपको, ठीक है। तो आंसर आपको कुछ ऐसा मार्क करना पड़ेगा कि वो 0 से लेके 9 के बीच होगा। मतलब आपका आंसर आएगा जैसे मान लो 4 मीटर स्क्वायर, तो आप वहां पे 4 पे आप एनसर्कल करोगे, 4 पे आप क्लिक करोगे, अगर आप टाइप करोगे। अगर आप आंसर आता है 5 पे टाइप करोगे। अब इसमें रहता है, मान लो आपका आंसर आ रहा है मान लो 5.25, एग्जैक्ट 5.25, यू विल राइट इट एज 5। अगर आपका आंसर आ रहा है 5.6, देन आपको खेलना पड़ेगा दैट सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज यहाँ पे वो लोग आंसर ऐसा ही डालेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर में आए। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, देन आपको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, वो डेसिमल पॉइंट करके आपको एक रियल नंबर का एक वैल्यू लिखना है। दिस विल बी योर न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप। ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ गेट एग्जाम, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्या होगा। दिस इज द दैट स्लाइड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो? नो सर। ठीक नहीं है, सर। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। सर अगर हाँ पॉइंट में आंसर आया सपोज हाँ। 0.44, तो हम्म। मतलब उसमें क्या लिखना पड़ेगा अगर जीरो 0.44? पॉइंट जीरो, अगर 0.44 आंसर आ रहा है, अब पॉइंट के बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर, अगर वो 0.5 के बाद ही चेंज होता है, 5 से पहले तो चेंज होगा नहीं। अगर 5 से पहले चेंज नहीं होगा मतलब वो 0 ही होगा आंसर, वहां पे 0 भी रहेगा, वहां पे आप 0 भी लिख सकते हो। ऐसा भी है कि आंसर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत, आपको लगेगा नहीं ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर 0 हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब वो चीज यस आपको सर। थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आंसर 0 आया है, मैंने जब दिया था, मेरा भी 1-2 बार आंसर 0 आया है और वो क्वेश्चन सही भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, वो यहाँ पे देख रहा है कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट है कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट अगर है देन वेल एंड गुड, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पे फिर गलती, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, वहां पे जाके मान लो अगर वो ऐसा चक्कर फंस गया, सिग्निफिकेंट फिगर का चक्कर फंस गया, वहां पे अगर आपने गलती कर दिया तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू कर रहे हैं हमारे सिलेबस से। सिलेबस का जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिजाइन सिलेबस इज स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग। ठीक है, मैं बहुत ही ब्रीफ में जाऊंगा, ऊपर ऊपर से ही जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो आप ही लोग बताओ, आप क्या समझते हो स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग से? बोलो। सर स्टैटिक लोड क्या बताएं? सर डायनामिक लोड मतलब अगर रनिंग कंडीशन में जो लोड लग रहा है दैट इज नोन एज डायनामिक लोड। देखो सर सिंपल। स्टैटिक लोड मींस हाँ, व्हेन द शाफ्ट इज एट रेस्ट। अच्छा, स्टैटिक मतलब तो वही हुआ, और हमेशा तो सब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। और डायनेमिक लोडिंग?
डायनामिक रनिंग कंडीशन में जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वही डायनामिक लोड होगा। अच्छा सर जब लोड वेरी होता है या फिर लोड का पोजीशन चेंज होगा देखो, ऑन अगर मशीन। हाँ हाँ सिंपल वे में अगर अगर मैं मान लो मेरे को गेट के हिसाब से मेरे को डिफाइन करना है, मान लो दे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक लोडिंग, चार ऑप्शन, चार कंडीशन दी थी आपको, करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं स्टैटिक लोडिंग का, स्टैटिक लोड मतलब लोड टाइम के साथ साथ बॉडी पे वेरी नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? हेलो, बात समझ में यस आया? सर, यस सर, यस। टाइम यस सर, के यस साथ सर। साथ अगर लोड वेरी नहीं करता है, कोई भी बॉडी ले लो, चाहे वो गियर हो, शाफ्ट हो, कुछ भी हो, फाइन, दैट विल बी योर स्टैटिक लोड। अगर टाइम के साथ साथ लोड वेरी करता है, मान लो एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड लोड था 40 न्यूटन, एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड लोड चेंज हो गया 50 न्यूटन, जैसे कि आपका फटीग में होता है, फटीग में होता है, चेंज होता है टाइम के साथ साथ लोड, वहां पे बात करोगे आप डायनेमिक लोडिंग का। अब ये नहीं है कि हाँ डायनेमिक लोडिंग है तो बॉडी हाँ रनिंग कंडीशन में है, बॉडी चल रहा है, लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूं स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड का, स्टैटिक लोड मींस इफ the loading condition does not change with respect to time, that is your static loading. If the loading condition changes continuously at each and every interval of time, that is your dynamic loading. Clear? अब स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग के वजह से मुझे पता है कि जब मैं किसी भी बॉडी पे लोड अप्लाई करता हूँ, लोड के वजह से उस बॉडी पे व्हाट इज डेवलप्ड, स्ट्रेस इज डेवलप्ड, देन ड्यू टू दिस स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग some stresses will get developed. What are those stresses? It can be an axial stress. Axial stress can be tensile stress. It can be compressive stress, which act perpendicular to the cross-sectional area of the body. It can be a transverse stress also. अब एग्जांपल दे सकते हो ट्रांसवर्स स्ट्रेस का? एग्जांपल दे सकते हो ट्रांसवर्स स्ट्रेस का? हेलो हेलो, नो सर, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, शियर स्ट्रेस क्या होगा? ट्रांसवर्स स्ट्रेस? सर शियर स्ट्रेस मतलब तो सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करे तो शियर स्ट्रेस तो जनरेट होता है ना। सिंपल देखो, स्ट्रेस आपका दो टाइप का होता है, वन इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज योर पैरेलल स्ट्रेस. Normal stress means if the stress which is acting on the body perpendicular to the cross section of the body, that will be your normal stress. फॉर एग्जाम्पल टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस आप क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर पे लगाते हो। मान लो ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, फाइन, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, लोड अप्लाई करता हूँ, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा दैट विल बी योर टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस. एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेस और पैरेलल स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस. ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, फाइन, अगर ये बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं मैं आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल पैरेलल और वो भी सरफेस के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसके वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज योर ट्रांसवर्स स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूमेरिकल में बहुत गलती होता है कि आपको स्ट्रेस पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको स्ट्रेस निकालना है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस शियर स्ट्रेस, ट्रांसवर्स स्ट्रेस, एंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है? सिमिलरली स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग के वजह से आपका बेंडिंग भी होता है, टॉर्शनल स्ट्रेस भी जनरेट होता है, फाइन. So these are the stresses which is generated due to static and dynamic loading conditions. Fine. Next is your induced stress. What is stress? कोई define कर पाएगा what is stress?
सर स्ट्रेस मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसकी अंदर पार्ट यूनिट एरिया में जो भी फोर्स डेवलप होगा जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर पाएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, बट अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरे को गेट के लिए अगर आंसर करना है तो मैं क्या Sir, करूंगा? the हाँ बोलो। resistance load is called stress. व्हाट लोड? Internal resistance to Yes, the yes, yes. load. Very good, very good. In one line, if I want to define stress, fine, I will define it that internal resistance offered by the body due to any external load acting on it. That is the stress. Simple definition, simple definition. Gate point of view से. फाइन, किसी को कोई डाउट है स्ट्रेस के डेफिनेशन? उसके बाद तो फॉर्मूला आता है दैट सिग्मा इज इक्वल टू पी No, बाई sir. ए, बट स्ट्रेस का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा वो डिफाइन स्ट्रेस, यू कैन नॉट से दैट स्ट्रेस इज पी बाई ए, नो। वो जो पी है सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, दैट पी इज योर रेजिस्टिव लोड against the cross sectional area, resistive load divided by cross sectional area. So sigma is not p by a, it is the resistive load divided by cross sectional area. That means the internal resistance which the body resists due to external load acting on the body. Clear है स्ट्रेस के बारे में? कोई दिक्कत किसी को? Sir, clear. फाइन, नेक्स्ट। अब डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रेंथ। अब आप डिफाइन करो स्ट्रेंथ क्या होता है। ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आप लोग को डिजाइन 1 में। स्ट्रेंथ क्या होगा? To Sir, can you repeat con- can you repeat the question? डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी। अच्छा 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 अच्छा। the ability to resist the stress. एबिलिटी टू रेजिस्ट द स्ट्रेस। ओके, yes, it is accepted, answer is accepted। और कोई कुछ बोलना चाहेगा स्ट्रेंथ के बारे में? Sir, it's the ability to resist the deformation of the body, that is called strength. जरूरी थोड़ी ना है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है। नहीं मतलब डिफॉर्मेशन होने के लिए मतलब पहले जो उसको रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन ना मतलब ना होए तो उसको जो एबिलिटी है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलो और कोई कुछ बोलना चाहेगा स्ट्रेंथ के बारे में? और कोई कुछ नया आंसर? चलो, स्ट्रेंथ सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं स्ट्रेंथ इज कोई भी बॉडी, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बॉडी कितना ज्यादा लोड झेल सकता है ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन, दैट इज स्ट्रेंथ। वर्किंग कंडीशन में अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तब तो स्ट्रेंथ का बात ही नहीं आएगा। रेस्ट कंडीशन में है, बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मशीन रुका हुआ है, मशीन कितना लोड झेल रहा है वो स्ट्रेंथ है? नहीं। कार, ठीक है, कार जब खड़ा रहता है, अब कार में तो सब बहुत कुछ लगा हुआ है ना, तो जब कार रुका हुआ है, जब कार रेस्ट कंडीशन में है, उस समय मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कार के अंदर जो ये लगा हो, जो क्या बोलते हैं बियरिंग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, तो वो जितना कार के लोड को झेल सकता है, दैट इज स्ट्रेंथ। नो, when the body is in working condition, during working condition, how much load that the body can resist during working condition is known as strength। अब ये स्ट्रेंथ वेरी होता है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। अगर मान लो मटेरियल मेरा डक्टाइल है तो मैं जानता हूं कि बॉडी का मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ विल बी व्हिच स्ट्रेंथ? Yield strength. Yield strength। If the material is ductile in nature, then maximum strength of the body will be which Yield strength? strength. Yield strength. ब्रिटल के लिए, डक्टाइल के लिए yield, ब्रिटल के लिए Middle के लिए सर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल मत बोलो, आप बोलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर मैं लोड कंप्रेसिव लगा दूंगा तो वहां पे आ जाएगा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर मैं लोड लगा रहा हूं टेंसाइल तो वहां पे आएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर किसी बॉडी में किसी लोड की वजह से बेंडिंग हो रहा है तो वहां पे आ जाएगा अल्टीमेट बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो आप खाली बोलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ।
Fine. And in design, we normally represent yield strength by SYT. You already know. Ultimate strength, we represent it by SUT. If it is ultimate tensile strength, it is SUT. If it is ultimate compressive strength, it is SUC. If it is ultimate shear strength, it is SUS. And if we are talking about yield shear strength, it is SSY. तो ये पॉइंट का ध्यान, मतलब ये नोटेशन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि SSY क्या होता है, SUS क्या होता है। क्योंकि कभी गेट में क्या करता है, पूछ देगा कि SSY इज इक्वल टू 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको यही पता नहीं है कि SSY क्या होगा, फिर तब आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर, नो No, sir. नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ। आप लोग पढ़ चुके हो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? It is the ratio of the maximum stress divided by the working stress. ठीक है, वो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, वो तो किताब में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। अब इसे समझ में क्या आता है, गेट में मेरे को समझना है, फॉर्मूला तो याद करना ही है, फिर समझना भी। अगर नहीं समझूंगा तो मैं गेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसे समझ में क्या आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से? कोई Sir, बोला how है? much it can bear? Means how much time? Means how Sir, much that body can take the load, or maybe that. और कोई? sir, means it shows that a system is how much stronger and means मतलब it क्या बोलो, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है एक सिस्टम, वो एक्सप्रेस करता है। तो वो तो यार स्ट्रेंथ हो गया। तू जो बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब तो मैं तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे में कितना ताकत है, मतलब मेरा स्ट्रेंथ कितना है, तेरे में कितना ताकत है, तेरा स्ट्रेंथ कितना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हुआ फिर? ओह सॉरी सर। समझो ना, ऐसे समझो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हुआ फिर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक वो फैक्टर है डिजाइन में, ध्यान से सुनना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक वो फैक्टर है डिजाइन में जिससे कि मुझे ये पता चलता है कि मटेरियल फेल होने से पहले तक का जो स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या मैंने ठीक बोला? बॉडी फेल होने से पहले, बॉडी फेल हो जस्ट पहले, मतलब अभी 2 सेकंड के बाद फेल हो, मतलब 1 सेकंड के बाद फेल हो जाएगा। बॉडी फेल होने से पहले तक कितना स्ट्रेंथ वो झेल सकता है, दैट विल बी डिनोटेड बाय अ नंबर इन डिजाइन, एंड दैट नंबर इज नथिंग बट योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या क्लियर हुआ डेफिनेशन किसी को? फेल होने से पहले कितना लोड वो झेलेगा? हाँ, चाहे तुम सिस्टम ही ले लो, एक होता है कि सिस्टम में कितना ताकत है, दैट इज स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब फेल होने से पहले, जस्ट फेल होने से पहले आप उसमें 10 न्यूटन लगाओ, 50 न्यूटन लगाओ, 60 न्यूटन लगाओ, 70 न्यूटन लगाओ, कितना ज्यादा उस मेंबर में या उस बॉडी में स्ट्रेंथ है, दैट इज डिनोटेड बाय अ नंबर, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके बाद जो आपने बोला एक डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन इज कमिंग, मैथमेटिकल डेफिनेशन। Yes, sir. Yes, clear. समझ में आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का? हेलो, यस सर। किसी को कोई डाउट है? फिजिकल मीनिंग डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी? हाँ सर, क्लियर है, पूरा क्लियर। ओके ओके, ये अभी जो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज जैसा मैंने बोला कि आप एक कॉपी बना के रखो, समरी कॉपी, उसमें आप लिखते रहना। जैसे आज मैंने पढ़ाया, आज ही आप जाके लिख लो, अपने वर्ड में लिखो तो आपको इजी पड़ेगा। अपने वर्ड में लिखो, मेरे इसको कॉपी मत करो, मैं जो ये जो यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, कॉपी मत करो, ठीक है। आप अपने वर्ड में लिखो कि हाँ मैं ये समझा, मुझे लगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसा होता है, स्ट्रेन को ये बोलते हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऐसा होता है। अपने वर्ड में लिखोगे तो फिर वो सही, आप कभी भूलोगे नहीं वो, ठीक है। Next, now if you define mathematically, factor of safety is nothing but the ratio of failure stress or failure strength divided by allowable stress.
allowable अगर आपको strength. निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा अलाउबल स्ट्रेस कितना है, आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा फेलियर स्ट्रेस कितना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, अगर इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो दिस इज अगेन वन फॉर्मूला, ये मेरे को पहला फॉर्मूला मिला, ठीक है, इसको आप लिख के रख लेना अपने समरी कॉपी में। व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी और किस कंडीशन के लिए वैलिड है, क्या है, इससे क्या समझता हूँ, ये लिख लेना। अगेन नेक्स्ट लाइन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉर्मली 3 to 5. Factor of safety is normally 3 to 5 if I am designing any component on the basis of yield point criteria. That means for ductile component, if you are designing anything for ductile material, factor of safety will lie from 3 to 5. ये experimental values है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। And if it is a brittle failure or if it is a brittle fracture, then that factor of safety value lies from 5 to 7. आपको दे देगा क्या बोलते हैं, गेट में दे सकता है कि दैट इफ आई एम डिजाइनिंग अ डक्टाइल मटेरियल, व्हाट इज द रेंज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? अगेन ये लाइन को आप अपने समरी कॉपी में लिख लेना दैट फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाइज बिटवीन 3 to 5, फॉर ब्रिटल फेलियर और ब्रिटल फ्रैक्चर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाइज बिटवीन 5 to 7। ठीक, नेक्स्ट it's around 3:47, okay. Again I am telling you, if anybody has left out to give your attendance, please write in the chat box, write your name and class roll number, okay. Sir, I can't write my name and roll number. It is showing failed. why? अच्छा, आप रोल नंबर बोलो मेरा अपना, कृष्णु ना, Sir, 16. 16। Yes, sir, 16. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? कोई डिफाइन कर पाएगा स्ट्रेन क्या होता है? मेरे डेफिनेशन को मत देखो, आप अपने हिसाब से बोलो, आप अपना दिमाग लगाओ। गेट में दिमाग लगाना, अगर दिमाग नहीं लगेगा तो गेट मुश्किल है, दिमाग लगाओ। व्हाट इज स्ट्रेन? Sir, change in cross section divided by original cross section. रॉन्ग। आपने डेफिनेशन बोला चेंज इन क्रॉस सेक्शन बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है मैं बोलूंगा। और कोई? Sir, Anybody else? any influence by a load which stretches, pulls, or puts a force on it to make a change in its dimension or deformation or anything is strain. यस। सिंपल वे में, गेट के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करेगा। डायमेंशन चेंज इन डाया बाय ओरिजिनल डाया भी हो सकता है, डायमेंशन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ भी हो सकता है, डायमेंशन चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया भी हो सकता है, डायमेंशन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट बेसिक जो फंडा है स्ट्रेन का, दैट इज स्ट्रेन मींस चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो लेंथ का चेंज या डाया का चेंज और वॉल्यूम का चेंज, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लियर है स्ट्रेन के बारे में? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो अगर मान लो मैं एक्सियल लोडिंग, अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट है, अगर मैं उसमें टेंसाइल लोड लगाता हूं, फाइन, तो टेंसाइल लोड लगाने के वजह से बॉडी में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? बॉडी का लेंथ, अगर टेंसाइल लोड है तो बढ़ेगा, अगर कंप्रेसिव लोड है तो बॉडी का लेंथ घटेगा। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई L. Delta L will be positive if it is tensile strain. Delta L will be negative if it is compressive strain. Same goes for other type of stresses also. ठीक है? नेक्स्ट इज अगेन, फिर ये फॉर्मूला आप लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? Sir, it is the ability of a material to withstand changes in length when it is under compression or tensile loads. ओके, और कोई?
बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। देखो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप याद करने बैठ कितना आप याद करोगे? आपके पास 15-20 सब्जेक्ट है, कितना याद कर लोगे आप फॉर्मूला, कितना क्या कर लोगे? तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको समझ के करना पड़ेगा। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग कोई कुछ Sir, नहीं it बोल is रहे the हैं। ratio of Sir, the stress divided by strain. sir, sir, रेशियो ऑफ sir, it is स्ट्रेस, a ratio of the stress रेशियो of ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। longitudinal stress by longitudinal strain. अच्छा Yes, sir. Longitudinal stress by longitudinal strain. अच्छा, चलो ये कहाँ से आता है ये फॉर्मूला? ये E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? Sir, ये आता है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ से। क्या होता है हुक्स लॉ? Sir, Hooke's law stated that the stress is directly proportional to the strain नो, आप इनकम्प्लीट within elastic डेफिनेशन, limit. इट इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। हुक्स लॉ इज नॉट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू In स्ट्रेन। आप इनकम्प्लीट बोल रहे हो, कंप्लीट बोलो। किसी कोई बोल पाएगा sir, कंप्लीट So डेफिनेशन? in elastic limit, within elastic limit, it is विद इन, stress is directly Sir, within elastic within limit. elastic limit, stress is proportional to strain. यस, Yes, yes, sir. ये सही डेफिनेशन है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि कहाँ तक। मैंने अभी अभी Within वही elastic बोला, limit, sir, the मैंने stress is directly proportional. वही बोला कि फॉर्मूला बहुत सारा है, मेरे पास हजारों फॉर्मूले हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? अगर ये इलास्टिक लिमिट के रीजन को क्रॉस कर जाएगा तब क्या ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ किसी क्वेश्चन में? नहीं sir. नहीं लगा सकता। तो आपको जब आप लिखोगे अपने कॉपी में लिख लेना दैट दिस E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इन ब्रैकेट में, दिस इज वैलिड ओनली टिल इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट के बाद अगर प्लास्टिक रीजन में चले जाता है और अगर ये पूछता है कि क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, नो, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब कोई भी बॉडी इलास्टिक रीजन में रहेगा। जैसे ही वो इलास्टिक से प्लास्टिक में चेंज हुआ, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है? सो E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस मैं जानता हूँ दैट लोड अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लेंथ, स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल बाई एल। सो पी बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा दैट इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है गेट में। कोई डाउट यहां तक? No, sir. समझ में। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के बारे में, ठीक है? अब आप मेरे को ये बोलो, शियर, अगर किसी बॉडी में शियर हो रहा है तो उस बॉडी में क्या हो रहा है? What is happening? I am telling that a body is shearing. So what is basically happening in that body? Sir, a stress मतलब is being applied due to which there will be a change in dimension, that is strain, and it can be longitudinal strain, latitude strain, anything. Longitudinal, transverse. ना और कोई कुछ बोल सकता है? शियर स्ट्रेस से आप क्या समझते हो फिजिकली? अगर किसी बॉडी में शियरिंग हो रही है तो क्या हो रहा है उस बॉडी में बेसिकली? मतलब सर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, वो तूने जो बोला वो भी ठीक है, तूने जो बोला वो भी ठीक है, अच्छा, दैट इज करेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मेरे पास एक बॉडी है तो दो बॉडी नहीं है, तब कैसे डिफाइन करूँ, तब कैसे होगा शेयरिंग? पर हम जिस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हाँ, वो उस फोर्स हाँ। मतलब शियर स्ट्रेस के वजह से वो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। मतलब मैंने जो डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये डायग्राम सही बनाया है सिंगल बॉडी के लिए? Yes, sir. हाँ, ठीक है, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और नीचे फिक्स किया हुआ है, फाइन। व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, I am applying a force over here and this force is parallel to the cross section of this body, fine। तो क्या होगा? शेयरिंग होगा मींस टिल्ट हो जाएगा बॉडी, हल्का सा टिल्ट हो जाएगा by some angle। Angular deformation, sir. Angular एंगुलर deformation. डिफॉर्मेशन, हल्का सा एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो आप कितना डिफॉर्मेशन हो, पहले तो 0 डिग्री था एंगल, उसके बाद गामा डिग्री से
हल्का सा उसको डिस्टॉर्ट हो गया। दिस इज शियरिंग, दिस इज शियरिंग। ठीक है, अभी जो नया शेप बना बॉडी का, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन भी आपका रेक्टेंगुलर है, बट ये जो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है दैट इज इन टिल्टेड कंडीशन। से गामा इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री पे जो आपका टिल्टेड रेक्टेंगल है दैट इज योर न्यू क्रॉस सेक्शन। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, ओल्ड क्रॉस सेक्शन एंड न्यू क्रॉस सेक्शन इज सेम। क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एंगल। बॉडी हल्का सा टिल्ट हो गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द मेन हार्ट ऑफ दिस शियर स्ट्रेस। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये गामा वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है शियर स्ट्रेस में। ठीक है, उसके बाद तो फॉर्मूला हर कोई जानता है दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाई एरिया, सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो फोर्स के पैरेलल होगा। आई विल टेक दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस व्हिच क्रॉस सेक्शनल एरिया आई विल टेक दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लोड। फाइन, अब शियर स्ट्रेस हो गया, अब मुझे निकालना है शियर स्ट्रेन। जैसे होता है नॉर्मल स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पे कैसे निकालूंगा मैं शियर स्ट्रेन, कोई बोल सकता है डायग्राम देख के कैसे निकालूंगा शियर स्ट्रेन? डेरिवेशन में मत जाओ, आप खुद देखो, डायग्राम देख के मेरे को बोलो कैसे निकालोगे शियर स्ट्रेन। सो चेंज इन एंगल, एंगल जितना चेंज होगा वो एंगल के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, इनिशियली एंगल वाज 0 डिग्री, finally the angle is gamma degree. Fine, so if I take this much figure, that means this small triangle, and if I find out the value of tan gamma, tan is nothing but perpendicular by base. Why I am taking tan, why not I am taking sin or cos? कोई बोल सकता है मैं tan ही क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे sin और cos क्यों नहीं ले रहा हूँ? देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। सर बिकॉज जो स्ट्रेन हुआ है वो सर जो लेंथ एल है वो इंक्रीज हुआ है, लेंथ एल जो है ना फिगर में वो इंक्रीज हुआ है, तो अगर उसका मैं डिस्टेंस साइन बढ़ और गया। कॉस लूंगा तो हाइपोटेनियस का टर्म आएगा जो कि मुझे चाहिए यस ही सर, नहीं, यस सर। वो तो चेंज ही नहीं हुआ, वो टिल्ट हुआ बाई 10 डिग्री एंगल, बट लेंथ इज सेम। अगर ये लेंथ इज सेम बट वो टिल्ट हो गया बाई 10 डिग्री एंगल। लेंथ कहां पे चेंज हुआ, ये लेंथ चेंज हो गया, ये वाला लेंथ चेंज हो गया, तो इसीलिए मैं साइन और कॉस नहीं लूंगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में ही हाइपोटेनियस आ जाएगा, इसलिए मैं tan के लिए जाऊंगा। So tan gamma is equal to P by B. Perpendicular is X, base is your say L, and for very small angles, if tan gamma is very small, then you can write tan gamma near about equal to gamma. So gamma is equal to X by L, and this is your shear strain. आया समझ में? Again, this is one of the important formula. ठीक है, कोई डाउट? सर एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वाई टेन? वाई tan, आप बोलो, ठीक, चल तू ही बोल, क्यों मैंने tan लिया, क्यों यहाँ पे साइन और कॉस नहीं लिया? डायग्राम में, हाँ, डायग्राम में आंसर है, डायग्राम में ही आंसर छुपा हुआ है। डायग्राम देख के बोलो मैंने tan क्यों लिया, मैंने साइन और कॉस क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर लेंथ जो है एल वो तो मतलब सेम ही है, लेकिन प्लस जो एंगल है, एंगल की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या? नहीं, लेंथ आपका सेम है, चेंज कहाँ लेंथ हो रहा है? सेम है। देखो, ये पोर्शन हल्का सा चेंज हुआ कि नहीं? पहले हाँ, यस सर, यस सर। ये पोर्शन यहाँ पे था, यहाँ पे था, अभी ड्यू टू शियर स्ट्रेस, ड्यू टू शियर फोर्स, दिस इज द न्यू पोजीशन। कितना यस चेंज सर, हुआ, इतना चेंज हुआ, लेकिन बॉडी का लेंथ तो उतना ही है। मैं खड़ा यस हुआ सर, हूँ, यस सर। अगर मैं अपने आप को 10 डिग्री से हल्का सा रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, तो मेरा क्या लंबाई चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। मेरा तो लंबाई चेंज नहीं होगा, मैं 5 फीट 7 इंच का हूं तो मैं उतने का ही रहूंगा। हाँ, मेरा हम्म। मेरा मेरा मान लो ये मेरा हाइट है, ये मेरा सर है, ये मेरा पैर है। सर सर अगर मैं सर अपने आप को मान लो 10 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा, उतने का उतना ही रहूंगा, 5 फीट 7 इंच का, बट ये डिस्टेंस चेंज हो गया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, मतलब ये मेरा सिर था, इनिशियल सिर, अब ये मेरा फाइनल सर है, ठीक है, इतना चेंज हो गया। तो अगर साइन और कॉस लूंगा तो हाइपोटेनियस वाला टर्म आएगा जो कि मुझे अच्छा, लेना अच्छा। चाहिए, उसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा है।
तो Yes, अगर sir. मैं Yes, sir. tan में परपेंडिकुलर और बेस आता है तो यहाँ पे ये चेंज मेरे को मिल जाएगा। tan gamma अच्छा is अच्छा अच्छा. E by B x by L. Tan gamma is near about equal to gamma for very small angle. Gamma is equal to x by L, which Sir, is your strain. excuse me, sir. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, Got it. Got it. सर सर इसमें जो लेंथ इंक्रीज हुआ है सर, वो तो डॉटेड लाइन का ही हुआ है। कहाँ पे? सर जो डॉटेड लाइन था उसका पहले लेंथ एल था, फिर हाँ। सर वो स्ट्रेन की वजह से उसका लेंथ इंक्रीज हो गया है, √2L हो गया है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज हो गया है। आपका ये चीज ऐसा हुआ है, गामा इज Yes, इक्वल sir. टू एक्स बाई एल, एक्स इज इक्वल टू गामा। हाँ हाँ हाँ। सर अगर बॉडी 10 डिग्री रोटेट होगा तो सर वो सर्कुलर मोशन में होता है, ये तो सर रोटेट होने के बाद भी सेम हाइट पर पहुंच रहा है। मतलब सर इसमें स्ट्रेन हुआ है, हाइपोटेन्यूज इंक्रीज हुआ है, डॉटेड लाइन का लेंथ बढ़ गया है एल हाँ प्लस। सर, लेंथ बढ़ गया है। यहाँ पे जो एंगल में चेंज आ रहा है दैट इज इन लीनियर डायरेक्शन, दैट इज इन लीनियर डायरेक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, नो, वो अलग चीज है। द इन लीनियर डायरेक्शन से अलोंग एक्स एक्सिस योर एंगल गामा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री, 10 डिग्री टू 20 डिग्री। यस सर। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू application of force or due to displacement of the body in a linear direction, not in an angular direction. दिख रहा है डायग्राम में? ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है? No, sir. हेलो, ठीक है। सो अभी तो 4 तो बच गए हैं। क्या आपको कंटिन्यू करना है आगे कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं? बोलो। हेलो, इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू टिल 4:15, और अगर आप बोलोगे कि रुक जाओ तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, आई डोंट हैव एनी इशू। Sir, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. करो कंटिन्यू, ठीक है। मैं 4:15 तक मैं करूंगा, उसके बाद Okay, फिर sir. हम लोग का मीटिंग है तो उसके बाद मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो फिर करता हूँ। अरे नहीं, आप लोग, अरे तुम लोग का तो वो है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू है सर। ना ना ना, जो तो नहीं कर सकता फिर 21 रोल नंबर 21 से 30 का इंटरव्यू है तो नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर हम लोग फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है, एट अराउंड 1 PM फॉर फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्लास। ठीक है, ओके Okay, sir. Thank you. और जिसने भी अटेंडेंस नहीं लिखा है रोल नंबर 16 को छोड़ के, उसका मैंने नोट कर लिया है, बाकी लोग अटेंडेंस लिख के फिर जाओ, नेम एंड क्लास रोल नंबर। Sir, hello, sir. हाँ सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ईयर वाइज, आपने जैसे बोला. हाँ. अच्छा, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब नहीं हो रहा, तो वो आपको भेज दूं क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एक काम करो, मेरे को ऐसे भेज मत, तू तेरे से जितना होता है उतना सॉल्व कर, सॉल्व करके फिर मेरे को भेज, ठीक है? फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि तू कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे तेरा मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर. ओके. तो अगर मैं सॉल्व कर दूं एग्जाम, तो अगर मैं सॉल्व कर दूंगा फिर तो क्या फायदा हुआ? फिर तो मैं अपना एग्जाम में मैं अपना मार्क्स लेके आ जाऊंगा ना। तू सॉल्व कर दे, जितना सॉल्व होता है उसके बाद तू मेरे को भेज, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि नहीं, हाँ ये पॉइंट में गड़बड़ किया है, इस पॉइंट में गड़बड़ किया है। ठीक है सर. ठीक है सर. ओके ओके ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछ लो। ठीक है, फिर देन मैं आई विल व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई विल बी एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर। फाइन, वी विल अगेन मीट टुमारो एट 1 PM फॉर फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्लास। थैंक यू।